सीएसआर और टीए के बहुत सारे एमसीक्यू चैनल पर पहले ही आ चुके हैं। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। तो आज के हमारे एमसीक्यूज होंगे जेटी के ऊपर यानी ज्वाइनिंग टाइम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एमसीक्यू इज ज्वाइनिंग टाइम इज द टाइम अलाउड टू ज्वाइन। मतलब ज्वाइनिंग टाइम कौन से टाइम को बोलते हैं? A post on new appointment. B, a new post on promotion. C, duty after returning from sick leave. D, a post on transfer in public interest. सही जवाब है D. It is the time allowed to join a post on transfer in public interest. Next question. Joining time is admissible for. मतलब इनमें से किसमें ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? A, joining a post on transfer in public interest. B, joining a post on transfer on own request. C, joining a post on deputation. D, none of the above. सही जवाब है ऑप्शन A, joining a post on transfer in public interest. अगला सवाल है joining time is allowable to government servants. मतलब इनमें से कौन कौन से सरकारी कर्मचारी को ज्वाइनिंग टाइम अलाउ होगा? A, appointed in civil services under central government. B, appointed in civil post under central government. C, appointed as work charged staff. D, all of the above. सही जवाब है all of the above. सभी के लिए जेटी अलाउड होगा। अगला सवाल है CCS JT रूल्स 1979 आर एप्लीकेबल टू। मतलब CCS रूल्स 1979 किन के लिए लागू होगा? A, all central government servants in civil services and posts. B, railway employees. C, armed forces personnel. D, government servants paid out of contingencies. Right answer is option A, all central government servants in civil services and posts. अगला सवाल है ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट अलाउएबल इन केस ऑफ। मतलब कौन से केस में ज्वाइनिंग टाइम अलाउ नहीं होता है? हमें नहीं बताना है जिसमें अलाउ नहीं होगा। A temporary transfer for a period up to 180 days. B, temporary transfer for a period more than 180 days. C, permanent transfer. D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन A, temporary transfer for a period up to 180 days. अगला सवाल है सिक्स्थ, ज्वाइनिंग टाइम इज अवेलेबल इन केस ऑफ। मतलब ज्वाइनिंग टाइम कौन से केस में अलाउएबल है? A, transfer within the same station not involving change of residence. B, transfer within the same station involving change of residence. C, transfer to another station involving change of residence. D, all of the above. Right option is all of the above. D, सभी में अवेलेबल होगा। अगला सवाल है अंडर CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम अलाउएबल इज। मतलब CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स के तहत कम से कम कितना टाइम अलाउएबल है? A, 10 days. B, 12 days. 1 days. D, 15 days. सही जवाब है C, 1 day. अगला सवाल है 8th, in case of air travel maximum joining time available is। मतलब वायु मार्ग की यात्रा के लिए कितना ज्वाइनिंग टाइम उपलब्ध होता है? A, 10 days. B, 12 days. 15 days. 7 days. सही जवाब है B, 12 days. अगला सवाल है 9, 1 day ज्वाइनिंग टाइम इज अवेलेबल इन केस ऑफ। मतलब इनमें से कौन से केस में एक ही दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है? A,
transfer within the same station not involving change of residence, B, transfer within the same station involving change of residence, C, transfer to another station not involving change of residence, D, all of the above. लास्ट ऑप्शन सही है, all of the above. 10th question, amount of joining time allowable depends on, मतलब ज्वाइनिंग टाइम का ड्यूरेशन किस पे डिपेंड करता है? ए, बेसिक पे और ग्रेड ऑफ द ओल्ड पोस्ट, बी, बेसिक पे और ग्रेड ऑफ द न्यू पोस्ट, सी, नेचर ऑफ लोकेलिटी बीइंग एक्सपेंसिव और स्पेशली एक्सपेंसिव, डी, डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर्स. सही जवाब है डी, पुराने और नए हेडक्वार्टर के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. 11th, in case of transfer to from any northeast region or islands, additional joining time is allowable for, मतलब अगर ट्रांसफर एनी रीजन और आइलैंड में हुआ है तो एडिशनल कितना और ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? ए, 1 day, 2 days, 7 day, none of the above. ऑप्शन बी, 2 days का एक्स्ट्रा मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम. अगला सवाल 12, when holidays follows joining time, the normal joining time is deemed to be extended by such holiday. स्टेटमेंट है अगर ज्वाइनिंग टाइम के बाद हॉलीडे है तो सामान्य ज्वाइनिंग टाइम आगे बढ़ जाएगा उस हॉलीडे तक. क्या ये सही है या गलत? या फिर सी, ट्रू बट द नंबर ऑफ हॉलीडे शुड नॉट एक्सीड 2 days, डी, नन ऑफ द अबव. सही जवाब है ए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. 13, हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स्ड टू ज्वाइनिंग टाइम, मतलब हॉलीडे ज्वाइनिंग टाइम के पहले शामिल किया जा सकता है. सही या गलत? ये ट्रू बट द नंबर ऑफ हॉलीडेज शुड नॉट एक्सीड 2 days, डी, नन ऑफ द अबव. ऑप्शन बी फॉल्स है ये. अगला सवाल है 14, इफ द चार्ज ऑफ ओल्ड पोस्ट इज relinquished in the forenoon of a day, the joining time commences from, मतलब अगर पुराने स्टेशन से फोरनून में कर्मचारी को कार्य मुक्त कर दिया जाता है तो जेटी शुरू होगा ए, द सेम डे, बी, द नेक्स्ट डे, सी, द नेक्स्ट वर्किंग डे, डी, नन ऑफ द अबव. राइट ऑप्शन इज ए, the same day. Next question 15, if the official is relieved of old post in the afternoon of a day, the joining time commences from, मतलब अगर कर्मचारी दोपहर बाद कार्य मुक्त करा जाता है तो जेटी शुरू होगा कब से? ए, द सेम डे, बी, द नेक्स्ट डे, C, the next working day, D, none of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी, the next working day. 16th question, for the purpose of joining time, distance between old headquarters and new headquarters is calculated in case, मतलब जेटी के उद्देश्य से पुराने व नए हेडक्वार्टर के बीच की गणना की जाती है. कौन से केस में? ए, द ट्रांसफर ऑर्डर इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर्स, बी, द चार्ज इज रिलिंक्विश्ड एट अ प्लेस अदर देन हिज ओल्ड हेडक्वार्टर्स, सी, द हेडक्वार्टर्स इज चेंज्ड व्हाइल ऑन टूर टू द टूर स्टेशन इटसेल्फ, डी, ऑल ऑफ द अबव. सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव. 17, head of department may grant extension of JT up to, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट जेटी को कितने दिनों तक बढ़ाने की एक्सटेंशन दे सकता है? ए, 15 days,
बी 30 डेज, सी 45 डेज या 60 डेज? सही जवाब है बी 30 डेज की एक्सटेंशन दे सकता है। 18 ज्वाइनिंग टाइम कैन नॉट बी कंबाइंड विद। जेटी किसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता? ए अर्न लीव, बी सिक लीव, सी कैजुअल लीव, डी कमिटेड लीव। सही जवाब है सी कैजुअल लीव के साथ जेटी नहीं जोड़ा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विद। अब की बार है जेटी किसके साथ शामिल किया जा सकता है? ए अर्न लीव, बी हाफ पे लीव, सी लीव नॉट ड्यू, डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है डी, सभी के साथ कंबाइन किया जा सकता है। 20 in case of second transfer before joining the new post, fresh joining time is allowed from the date of receipt of the order for second transfer। मतलब सेकंड ट्रांसफर की स्थिति में नए पद के जेटी आदेश प्राप्ति पर एक नया कार्य ग्रहण काल शुरू हो जाएगा। क्या ये सही है या गलत? या फिर ट्रू बट द ज्वाइनिंग टाइम ऑलरेडी अवेल्ड इज ऑल्सो काउंटेड, डी नन ऑफ द अबव। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 21 in case of second transfer before joining the new post, fresh joining time is allowed based on distance between a headquarters of the old post and headquarters of new post on second transfer, b headquarters of the new post on first transfer and headquarters of new post on second transfer, c place of receipt of orders of second transfer and headquarters of new post on second transfer, d none of the above। इस क्वेश्चन का मतलब है सेकेंड स्थानांतरण की स्थिति में नया कार्य ग्रहण काल किस दूरी पर निर्भर करेगा? तो ऑप्शन सी प्लेस ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सेकेंड ट्रांसफर एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू पोस्ट ऑन सेकेंड ट्रांसफर के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। 22 in case of cancellation of transfer order, the time lapsed between handing over charge of old post and taking over charge again will be treated as। मतलब अगर ट्रांसफर आदेश निरस्त हो जाता है तो चार्ज हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में जो समय लगा है वो क्या माना जाएगा? अ लीव विद पे, बी जेटी, सी डाइज नो, डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन बी जेटी ज्वाइनिंग टाइम। 23rd unavailed joining time is credited to earned leave account in case of। मतलब उपयोग नहीं किया गया कार्य ग्रहण काल earned leave account in case of, मतलब ईएल अकाउंट में किस स्थिति में ईएल के रूप में क्रेडिट किया जाएगा? ए ट्रांसफर विद इन द सेम स्टेशन, बी ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, सी ट्रांसफर टू अनदर ऑल्सो इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रांसफर टू अनदर ऑल्सो इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस। 24 For the period of admissible joining time, the employee is entitled to draw। मतलब जेटी के पीरियड में कर्मचारी क्या प्राप्त करने का हकदार है? ए पे, बी डीए, सी कॉम्पनसेटरी अलाउंस लाइक एचआरए एक्सेट्रा, डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है डी ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल एक स्टेटमेंट है, फॉर द पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम द एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कन्वीनियंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू।